So students, let's discuss about ectopic pregnancy. So first you need to know the definition of ectopic pregnancy. Generally क्या होता है normally when there is a fertilization, आपको पता है fertilization कहाँ पे होती है? एम्प्यूला में, ठीक है? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी पार्ट में होती है फर्टिलाइजेशन एंड फ्रॉम देयर ओवा और जो भी जाइगोट बनता है वो आएगा और यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा, ठीक है? ये नॉर्मल प्रोसीजर है. बट इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये जो इम्प्लांटेशन है ये यूट्रस में नहीं होगी. दिस विल हैपन इन द फेलोपियन ट्यूब. ओके, सो राइट इट डाउन. इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मली कहाँ होनी चाहिए थी? यूट्रस में. हियर इम्प्लांटेशन of fertilized ovum happens outside the uterus. Okay, so implantation of fertilized ovum happen outside the uterus. Now what are the risk factors for ectopic pregnancy? So you need to remember the most common risk factor is what? That is previous ectopic. अगर previous ectopic था किसी फीमेल में तो chances क्या है? बढ़ जाएंगे, ठीक है? Previous ectopic pregnancy, ठीक है? What is another risk factor? If there is a history of previous tubal surgery. Now हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल सर्जरी से क्या होगा? सी, जब ये सर्जरी के बाद रिकवरी होगी तो क्या एडहेजन्स अगर बन गई, इन दैट केस ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ पे जाके इम्प्लांट कर जाएगा? वहाँ पे स्कार में या फिर उस एडहेजन में. इसीलिए देयर इज मोर चांस ऑफ एक्टोपिक इन केस ऑफ ट्यूबल सर्जरीज, ठीक है? नाउ व्हाट आर द अदर रिस्क फैक्टर्स? Other risk factors, first one is PID. PID is the most common, ठीक है? PID उसके बाद क्या है? If there is early age of intercourse. बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो भी PID के रिस्क फैक्टर्स थे, they are also risk factors for ectopic pregnancy, ठीक है? So early age of intercourse. Third risk factor is what? That is multiple partners, sex with multiple partners. Fourth is what? That is low socio-economic status. Economic status. Next risk factor क्या है? That is endometriosis. Endometriosis. उसके बाद next risk factor what is that? History of instrumentation. Even the contraceptive failure can leads to ectopic. Contraceptive failure. See, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है ना तो देयर आर लाइक 70% चांसेस कि ये जो प्रेगनेंसी होगी मोस्टली ये क्या होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है? नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज व्हाट? द फाइब्रॉइड, कॉर्नोफाइब्रॉइड मेनली. सी, दिस इज योर यूट्रस, ठीक है? ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है? यहाँ पे जहाँ ओपनिंग होती है फेलोपियन ट्यूब की, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नो. दिस इज कॉर्नो. अगर यहाँ पे फाइब्रॉइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन एम्प्यूला देयर इज अ फर्टिलाइजेशन. तो ये जो फर्टिलाइज जाइगोट है ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा और ऑब्वियसली यूट्रस में इम्प्लांट नहीं कर पाएगा. तो ये यहीं पे सेटल हो जाएगा कहीं इन द ट्यूब एंड एक्टोपिक विल बी
there is an increased chances of ectopic pregnancy. And what is the next factor? That is smoke. Okay. Now one more thing that you need to remember about the contraceptive failure is the sequence. See, more chances किसके साथ होंगे? If there is a tubal ligation हुई थी, तो in that case there will be more chances of contraceptive failures, or you can say tubectomy. Tubectomy के साथ there is a more chances. Second is IUCDs. See, अगर IUCDs फेल हुई ना तो मोस्टली वो प्रेगनेंसी क्या होगी? एक्टोपिक होगी. ठीक है. देन आफ्टर दैट OCPs followed by progesterone containing only pills. Okay. So this is the sequence for the contraceptive failure. Now what is the most common site of ectopic? So most common site is what? Ampulla. क्यों ampulla क्यों होगी? Because यहाँ पे क्या होती है? Fertilization होती है. We have already discussed the various part of fallopian tube. तो ampulla क्या है? Most common. First क्यों? Reason क्या है? First here fertilization take place. Fertilization takes place here. Second one is what? Second, it is the widest part. तो यहाँ पे जो ectopic है that can survive for some time, like for at least for 8 weeks it can survive in the ampulla. ठीक है? Now, if we talk about the second most common site क्या होगी? That is isthmus. And after isthmus, what is the next site? It can be interstitium. Interstitium में rarely implant होगा, ठीक है? But अगर होगा तो this will be dangerous. I will explain you why it is dangerous. Now just write down what is the sequence of ectopic. So sequence for ectopic. So first क्या बोला मैंने? Ampulla. Ampulla के बाद क्या होगा? Isthmus. After isthmus क्या होगा? Infundibulum. And after infundibulum क्या होगा? Interstitium. Okay, so this sequence you need to know. Now, in case of isthmus ectopic, अगर isthmus ectopic हुआ तो ये कब रप्चर करेगा? This will rupture around 6 weeks. ठीक है? And same way में if ectopic occurs in ampulla, we have discussed कब रप्चर होगा ये ectopic? That is around 8 weeks. At 8 weeks. In case of interstitial ectopic के केस में कब रप्चर होगा? That is at 12 weeks. At 12 weeks. Now see, ये एक ऐसी ectopic pregnancy है जो सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगी. ठीक है? क्यों ये सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर रही है? Because it is surviving for more time because this interstitium ना it is well supported by the uterus. तो यहाँ पे अगर ectopic pregnancy हुई तो जो वहाँ पे implant है that can takes the nutrition from the uterus and it is also well supported by the muscle of uterus. So right here it is well supported by uterus.
ठीक है. So that's why this is the most dangerous ectopic pregnancy. Most dangerous. Okay. Now this ectopic pregnancy can occur in abdomen as well. ठीक है. So in case of abdominal ectopic, सी एब्डोमिनल एक्टोपिक के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो जो वहाँ पे इम्प्लांट है दैट कैन टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गन्स. सो ऑब्वियसली इट कैन टर्न इनटू एब्डोमिनल प्रेगनेंसी. दिस कैन टर्न इनटू abdominal pregnancy, and this is supported by surrounding organs. ठीक है. ये जो एक्टोपिक एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है, इट कैन सर्वाइव टिल द सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर तक. थर्ड ट्राइमेस्टर और टिल सेकेंड ट्राइमेस्टर. ठीक है. एब्डोमिनल प्रेगनेंसी एक्टोपिक कैन लीड्स टू एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, और ये कब तक सर्वाइव करेगी, लाइक थर्ड और सेकेंड ट्रिमेस्टर तक पहुंच जाती है. ठीक है. एंड फॉर वैस्कुलर सप्लाई इट इज सपोर्टेड फ्रॉम बाय द सराउंडिंग ऑर्गन्स. जस्ट राइट हियर फॉर वैस्कुलर सप्लाई. ठीक है. नाउ सी व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो symptoms. So most common symptom here is the lower abdominal pain. Lower abdominal pain. Second symptom is what? This female comes to your clinic with what? Amenorrhea and spotting. Amenorrhea will be there. प्लस इसको स्पॉटिंग भी होगी थोड़ी. ठीक है. नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट वन मोर एक्टोपिक दैट वाज हीट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी. हीट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी, इसका क्या मतलब है हीट्रोट्रोपिक का? एक मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जनरली 2 प्रेगनेंसी साइमल्टेनियसली हो गई हैं. ठीक है. जिसमें से जो एक प्रेगनेंसी है वो तो नॉर्मल जगह इम्प्लांट करेगी, दैट इज इट्स इम्प्लांटेशन अकर इन यूट्रस. मीन्स एक प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन होगी, एंड जो सेकेंड प्रेगनेंसी है ना दैट विल बी एक्स्ट्रा यूट्राइन. और एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी this will be most commonly tubal ectopic. Okay. So just remember about this pregnancy. Now what is the risk factor for this heterotropic pregnancy? That is in vitro fertilization. Risk factor is in vitro fertilization. Now see, just there are 2 pregnancy. One is the angular pregnancy and other one is the cornual pregnancy. 2 types of this, angular and cornual. See, if this is the uterus, ठीक है, और ये क्या है, this is the fallopian tube. Same way, here is the uterus and here is the fallopian tube. अगर प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है नियर द कॉर्नुआ, we called it as angular pregnancy. This is what? This is the angular pregnancy.
एंड ये क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, दिस इज इंट्रा यूट्राइन, ठीक है। बट कॉर्नुअल प्रेगनेंसी यू ऑलरेडी नो, अगर ये कॉर्नुआ पे होती है तो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्नुअल प्रेगनेंसी एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट इंट्रा यूट्राइन, दिस इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ हिट्रोट्रॉपिक ऐसी प्रेगनेंसी होनी बहुत कॉमन है, वन कैन बी एंगुलर एंड वन कैन बी कॉर्नुअल, ओके। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर में हमने क्या क्या बात की थी, देयर विल बी ब्लीडिंग, देयर विल बी पेन एब्डोमेन एंड देयर विल बी एमेनोरिया। एंड सेकेंड वन इज जो पेन होगी ना, यहाँ पे जो हमने पेन की बात की थी, सी दो काइंड ऑफ पेन हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स इफ द एक्टोपिक इज अनरप्चर्ड, इफ द एक्टोपिक इज अनरप्चर्ड तो इन दैट केस कैसी पेन होगी, दिस पेन विल बी लोकलाइज्ड पेन, दिस पेन विल बी व्हाट, दिस इज लोकलाइज्ड पेन, ठीक है। सेकेंडली ये जो पेन होगी ना, क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पेन, मीन्स दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब स्ट्रेच, बेबी ग्रो करेगा, फेलोपियन ट्यूब स्ट्रेच होगी तो फीमेल की कंप्लेन क्या होगी, ऑब्वियसली पेन। और ये जो पेन है, दिस पेन विल ट्रेवल, दिस विल ट्रेवल व्हाट, T12, T11 and L1 nerve supply will be involved in this case, ठीक है। Just remember about unruptured pain. Now second will be the case of ruptured ectopic. So अगर rupture हुआ तो do you think it is a localized pain? Obviously not. This will be generalized pain, okay। and ये पेन क्यों होगी, this pain is due to peritonitis, peritonitis की वजह से पेन होगी, and this female will experience that guarding, that rigidity, okay। so guarding and rigidity will be there, okay। and at same time ये क्या बताएगी कि जो ये पेन है, it is traveling towards the shoulder tip। सी पेरिटोनाइटिस हुई तो फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसकी वजह से ये क्या बोलेगी, द पेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द शोल्डर टिप। सो पेन रेफर्ड टू towards the shoulder tip because of what, because of the involvement, phrenic nerve involvement, nerve involvement, okay। Now in case of a ruptured ectopic, what is the complaint of female in addition to pain and bleeding? क्या होगा, she will experience dizziness, ठीक है। dizziness क्यों होगा, obviously अगर bleeding है तो there will be hypotension। second will be orthostatic hypotension। So because of that, these two symptoms are coming in this female. Now ये जो bleeding होती है ना इस female patient में, ये bleeding कहाँ से होती है, that is from the uterus। This bleeding is mainly from uterus, और uterus में भी कहाँ से, from the decidua। You know decidua is what? It is the endometrium of pregnancy।
Now when decidua sheds off now, we called it as what? We called it as decidua vera. So decidua, so shedding of decidua is called as decidua vera. Okay. सी ये जो ब्लीडिंग यूट्रस से होगी ना, ये इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लीड नहीं होगा. दिस इज ओनली अ स्पॉटिंग. ओके, ओनली स्पॉटिंग विल बी देयर. जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट आर द फाइंडिंग्स यू गोना गेट? सी व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड ऑन जनरल एग्जामिनेशन. Different findings you will get. So let's discuss about them. So on PA examination, what you gonna get? First, tenderness will be there. Tenderness होगी, और ये tenderness mainly कहाँ पे होगी? Lower abdomen में होगी. ठीक है, lower abdominal tenderness. एंड ये आपको रप्चर्ड एक्टोपिक के केस में देखने को मिलता है. दिस विल बी सीन इन केस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक. व्हाट इज अनदर फाइंडिंग यू विल गेट ऑन बीए एग्जामिनेशन? दैट इज गॉर्डिंग एंड रिजिडिटी. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. गॉर्डिंग एंड रिजिडिटी आपको कब मिलेगी? इन केस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक, जब यहाँ पे पेरिटोनाइटिस प्रेजेंट होगी. सो व्हेन देयर इज द पेरिटोनाइटिस, और ये कब दिखने को मिलती है? रप्चर्ड एक्टोपिक के केस में. तो क्या साइंस मिलेंगे ऑन पीए एग्जामिनेशन? वन इज गार्डिंग एंड अदर वन इज रिजी. ओके, सो दीज आर द फाइंडिंग्स यू विल गेट ऑन पीए एग्जामिनेशन. जर्नलाइज्ड फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें जर्नलाइज्ड एग्जामिनेशन पे, तो ऑब्वियसली टेकीकार्डिया विल बी देयर. टेकीकार्डिया होगा इस फीमेल में. ठीक है, देन हाइपोटेंशन. दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द रप्चर्ड एक्टोपिक. ठीक है, जब रप्चर्ड एक्टोपिक होगा ऑब्वियसली अगर हाइपोटेंशन हुई तो टेकीकार्डिया भी तो होगा. सो हाइपोटेंशन, और इफ हाइपोटेंशन इज देयर, सो ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेबल एक्टोपिक, क्योंकि ब्लीडिंग है ना. सो दिस इज सीन इन केस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक. These all findings I am discussing about the ruptured ectopic. Now on PV examination, that was the per abdominal examination. On per vaginum examination, what are the findings? So first finding will be जो यूट्रस होगी that will be enlarged and it will be what? It will be soft. यूट्रस enlarged होगी plus it will be soft. ठीक है, और यहाँ पे जब आप फंडल हाइट देखोगे ना, और यू कैन से साइज ऑफ यूट्रस, तो that will be less than the what? That will be less than the gestational age, or you can say period of gestation से कम होगी हाइट. ठीक है, second finding present on PV is what? That is cervical motion tenderness. Cervical motion tenderness will be there. और cervical motion tenderness आपको एक और जगह देखने को मिलती है. This is seen in patients with PID as well. Seen with PID as well. ठीक है. Next finding will be what? That is adnexal tenderness. Adnexal tenderness. एडेनेक्सल टेंडरनेस भी पीआईडी में देखने को मिलती है. ठीक है. फोर्थ इज देयर विल बी एडेनेक्सल मास.
अगर ये एडेनेक्सल मास प्रेजेंट है तो यू कैन थिंक अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके, नाउ फीमेल जब आपके पास आती है with pain, bleeding and amenorrhea, what you gonna do? So एक फीमेल आई जिसमें पेन था प्लस एमेनोरिया था प्लस क्या थी उसमें, ब्लीडिंग. सो इन दिस केस फर्स्ट विल डू यूपीटी. ठीक है, आप करोगे प्रेगनेंसी टेस्ट. अगर ये प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, नाउ यू कैन हैव अ रफ आइडिया कि अगर पेन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी है, एमेनोरिया भी है, तो वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस कैन बी द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, यूपीटी सिर्फ यही बता सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं, वो साइट ऑफ प्रेगनेंसी नहीं बताता. ठीक है, सो आफ्टर दैट यूपीटी पॉजिटिव, तो आपके दिमाग में एक रफ आइडिया हो गया कि मे बी एक्टोपिक तो नहीं हो सकता. सो टू रूल आउट दैट एक्टोपिक, what is the investigation that you gonna do? That is transvaginal sonography. ठीक है, आप क्या करोगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करोगे. और ट्रांसवेजाइनल क्यों बोला मैंने, वाई आई डिडंट सेड ट्रांस एब्डोमिनल, क्योंकि ये जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती ना, दैट इज मोर सेंसिटिव फॉर द अर्ली प्रेगनेंसी. सो इट इज मोर सेंसिटिव for early pregnancy. Okay, now for the diagnosis हमने की TVS. ठीक है, TVS में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. See, first thing can be there is a intrauterine sac, इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल सैक प्रेजेंट है. ठीक है, विद व्हाट, विद द यॉर्क सैक और एम्ब्रियो इन इट, विद यॉर्क सैक एंड एम्ब्रियो. ठीक है, इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल यॉर्क सैक विद द एम्ब्रियो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायग्नोसिस क्या बना, आ डायग्नोसिस इज इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी. इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी. सेकेंड थिंग क्या होगी, सेकेंड डायग्नोसिस क्या हो सकता है कि टीवीएस पे यू गॉट एक्स्ट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी. आपको एक्स्ट्रा यूटराइन जेस्टेशनल सैक मेनली मिला. ठीक है, विद यॉर्क सैक एंड एम्ब्रियो. तो in this case what will be your diagnosis? That is ectopic pregnancy. This is what? Ectopic pregnancy. Third thing, थर्ड केस में क्या हो सकता है कि आपको कोई इंट्रायूट्राइन सैक मिला ही नहीं. ठीक है, देयर इज नो, कोई इंट्रायूट्राइन सैक नहीं है, बट क्या है यहाँ पे, आपको एक एडेनेक्सल मास फील हुआ. सो देयर विल बी कॉम्प्लेक्स एडेनेक्सल मास ऑन TVS, एडेनेक्सल मास. और ये मास कैसा है, इट इज सॉलिड प्लस सिस्टिक इन नेचर. ठीक है, जब आपने यूट्रस को देखा इस केस में, वो क्या थी, एम्प्टी. बट जब आपने फेलोपियन ट्यूब का डॉपलर किया ना, ऑन फेलोपियन ट्यूब डॉपलर, आपको एक साइन देखने को मिला, एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज रिंग ऑफ फायर साइन. ठीक है, ring of fire sign on the fallopian tube Doppler. It is suggestive of what? It is suggestive of ectopic pregnancy. ठीक है, so these are the three findings that you're gonna get on transvaginal sonography. और ये findings आपको mainly
हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट्स में देखने को मिलेगी, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। नाउ हाउ दिस रिंग ऑफ फायर साइन looks. So see, can you clearly appreciate this ring? So this is the ring and it इसके अराउंड एक फायर जैसा पूरा रिंग बना है. So this is what? This is a case of ectopic pregnancy. This is this ring of fire sign. Okay. Now next, now if on USG, if the signs are suggesting कि ectopic pregnancy हो सकती है but actually it is not the diagnostic signs, so what you can do? Ectopic pregnancy is present but they were not diagnostic. So in that case, next step is what? You will do serial HCG examination. Serial HCG values you will check. ठीक है, तो जो फर्स्ट HCG वैल्यू है, जो आपने फर्स्ट टाइम पे HCG का टेस्ट किया और फर्स्ट HCG वैल्यू अगर तो वो आई मोर देन 2000, इफ दैट इज मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट, प्लस आपको कुछ फाइंडिंग्स भी मिली हैं एक्टोपिक की अल्ट्रासाउंड पे, प्लस फाइंडिंग्स प्रेजेंट ऑन USG फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन तो आपका डायग्नोसिस पक्का क्लियर है कि ये क्या है, एक्टोपिक. तो आप इसको फर्दर क्या करोगे, ट्रीट भी एज एक्टोपिक ही करोगे. ओके. सेकेंडली, आपने जब सीरियल HCG किया, इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट, but along with this signs of ectopic pregnancy were present. So in this case what you will do, you will repeat this HCG. ठीक है, you will repeat HCG after 48 hours. 48 hours के बाद फिर से आप HCG का रेपिटेशन करोगे. अभी यहाँ पे आपको 3 फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती. ठीक है, फर्स्ट फाइंडिंग इज व्हाट, कि आपने HCG किया 48 आवर्स के बाद उसका लेवल डबल हो गया, डबलिंग वर प्रेजेंट. सो इन दिस केस व्हाट यू वांट टू डू, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सजेस्टिव ऑफ मेनली इंट्रा-यूट्राइन प्रेगनेंसी. दिस सजेस्ट इंट्रा-यूटेराइन प्रेगनेंसी. ठीक है, HCG की वैल्यू डबल होगी, सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ इंट्रा-यूट्राइन प्रेगनेंसी. सेकेंड फाइंडिंग वॉज, आपने HCG किया, ठीक है, और आपको उसमें स्लो राइज देखने को मिला. देयर वॉज व्हाट, स्लो राइज प्रेजेंट. सो दिस विल बी सजेस्टिव ऑफ व्हाट, एक्टोपिक. ठीक है. अब थर्ड फाइंडिंग, कि आपने जब HCG किया आपको क्या मिला, उसमें डाउनफॉल देखने को मिला. सो दिस वाज सजेस्टिव ऑफ व्हाट, ट्यूबल अबॉर्शन. दिस सजेस्ट ट्यूबल अबॉर्शन. सो ये आपने फाइंडिंग्स याद रखनी है जो आपको देखने को मिलेंगी. नाउ सी, इवन दो आफ्टर डूइंग द रिपीट HCG आपको स्टिल कुछ क्लियर नहीं हुआ, यू आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट वेदर इट इज ट्यूबल और इंट्रा-यूट्राइन प्रेगनेंसी, then again you will go for TVS examination. Okay, now what are the other investigation that you can do for the diagnosis? So if they ask you what is the gold standard, gold standard क्या है, gold standard is obviously laparoscopy.
Leproscopy is the gold standard investigation. Other investigation that you can do is serum progesterone level. You can check for serum progesterone. अब सीरम प्रोजेस्टेरॉन के दो केसेस हो सकते हैं. एक, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 25 नैनोग्राम पर ml, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी. ठीक है. सेकेंड केस क्या हो सकता है, ये जो सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, दिस इज लेस देन, इफ दिस इज लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml, then this is suggestive of what? That is ectopic or abortion in case of hemodynamically unstable patient. So in case of unstable patient, what you wanna do? This female patients come with pain, bleeding and amenorrhea. ठीक है. फर्स्ट, अगर ये हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने क्या करना है, पेशेंट को रिससिटेट करना है. मतलब इसमें बहुत सीवियर हाइपोटेंशन है, तो हाइपोटेंशन को पहले आपने रिससिटेट करना है. तो फॉर दैट व्हाट यू गोना डू, you will give 2 large bore IV cannulas. For that you gonna place 2 large bore IV cannulas and you will give IV fluids to this patient. So first resuscitate. So first you will resuscitate patient. क्या करोगे आप, 2 large bore IV cannulas place करोगे and you start giving IV fluids. ठीक है. और अगर इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत है तो आप वो भी दे सकते हो. ब्लड, यू कैन अरेंज द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसफ्यूज. नाउ सेकेंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैथेटराइज द पेशेंट. ठीक है. जब आपने कैथेटराइज किया तो यू कैन डू UPT, और अगर ये UPT पॉजिटिव है तो व्हाट यू कैन डू, you can locate for the signs for peritonitis, because इसमें क्या है, this patient came to your clinic with hypotension. ठीक है. UPT भी पॉजिटिव आया, तो अब क्या करोगे आप, you will search for peritonitis, whether there is a rigidity, whether there is guarding. Now you will search for peritonitis, और अगर peritonitis present है, ठीक है, इफ पेरिटोनाइटिस इज प्रेजेंट, देन क्या करोगे आप, यू विल गो फॉर लेप्रोटोमी. ठीक है. लेप्रोटोमी, इवन यू कैन गो फॉर लेप्रोस्कोपी एज वेल. ठीक है. लेप्रोटोमी एंड लेप्रोस्कोपी ये कर सकते. बट अगर इट इज एब्सेंट, पेरिटोनाइटिस नहीं है, तो in that case we will go for FAST, that is focused assisted. You will go for FAST, and on FAST what you will observe, if there is a intra abdominal collection present, then further you will proceed with leprotomy or leproscopy. So on FAST, if intra abdominal collections present, so in that case you will go for what, leprotomy or leproscopy. So this is how you want to diagnose this ectopic pregnancy in unstable patient. ठीक है. Now if इस पेशेंट में फॉर एग्जाम्पल व्हेन दिस पेशेंट केम टू योर क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड वाज नॉट अवेलेबल, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव वे टू डायग्नोस्ट इट. सो अल्टरनेटिव वे, if USG is not present,
So you can go for culdocentesis. कुल्डोसेंटेसिस, ठीक है। कुल्डोसेंटेसिस क्या है? जो पाउच ऑफ डगलॉस है ना, वहाँ से हम एस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एंड ऑन कुल्डोसेंटेसिस आपको ब्लड मिला, ठीक है। इफ यू गॉट द ब्लड एंड वो ब्लड कोगुलेट कर गया, इफ दैट ब्लड कोगुलेट्स देन व्हाट? इफ ब्लड क्लॉट्स देन मीन्स आपने जो सैंपल लिया था दैट इज फ्रॉम द पेल्विक वेसल्स। सो आपने पेल्विक वेसल से एस्पिरेट किया था। बट अगर क्लॉटिंग नहीं हुई, इफ क्लॉट इज एब्सेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यू टुक दिस सैंपल फ्रॉम द पेरिटोनियम, और अगर पेरिटोनियम में ब्लड है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट नॉर्मल, मीन्स दिस इज द केस ऑफ हीमोपेरिटोनियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेरिटोनियल ब्लीड हुआ है और दिस इज अ केस ऑफ रप्चर ectopic. So in this way, if USG is not available, you can still diagnose the ectopic pregnancy. The second way that you can use here is colpotomy. Colpotomy में क्या करते हैं हम? We will open up the pouch of Douglas and we will drain the pelvic abscess, ठीक है। Here we will open pouch of Douglas and drain pelvic abscess, ठीक है। After that you can go for hysterosalpingography and see hysterosalpingography आप कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इवन हिस्टेरोस्कोपी आप नहीं करोगे इफ द प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, जस्ट रिमेंबर दिस। सो इन दिस वे हम डायग्नोस करेंगे हमारी एक्टोपिक को इन केस ऑफ अनस्टेबल पेशेंट। नाउ हाउ यू गोना मैनेज दिस पेशेंट? सो मैनेजमेंट, सो जर्नली एक्टोपिक को मैनेज करने के लिए 3 मैनेजमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट, other one is the surgical management, and third one is what? Third one is the expectant management, ठीक है। See, expectant management is least preferred, but जो main preferred treatment है that is the medical management. So right here it is a preferred treatment, whereas this is less preferred. Okay, this is less preferred treatment. Now see what you gonna do in case of medical management. So first we'll discuss about medical management, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? दिस इज मेथोट्रेक्सेट यूज करेंगे, ठीक है। एंड ये जो हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं ना, इसका हम सिंगल डोज देंगे। इफ दे आस्क यू व्हाट इज द डोज फॉर मेथोट्रेक्सेट, सो इट इज जनरली 1 mg per kg. This is what? 1 mg per kg, or you can say it is 50 mg per meter square. 50 mg per meter square. So this is a MCQ point where they can ask you what is the dose of methotrexate that you're gonna use for the treatment of ectopic pregnancy. And remember, before you give methotrexate, always do LFT and RFT, ठीक है। बिकॉज मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा? LFT और RFT को और डी अरेंज करवाएगा। तो अगर पहले ही पेशेंट का डी अरेंज है और ऊपर से मेथोट्रेक्सेट दे रहे हो तो दिस कैन लीड्स टू लिवर और किडनी फेलियर्स, ठीक है। तो ऑलवेज आपने LFT और RFT करना है बिफोर गिविंग द मेथोट्रेक्सेट।
ठीक है। सेकेंड, आप इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट दे सकते हो इस फीमेल में, बट इसका सिर्फ आपने एक ही डोज देना है, ठीक है। इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। और ये कैसे लगेगा, IM लगेगा ऑन डे 1, एक ही डोज जाएगा, ठीक है। वी विल फॉर्म व्हाट regime, will form single dose regime, ठीक है। सिंगल डोज regime will form, मीन्स एक डोज ही जाएगा एक वीक में, ओके। अब अगर हम बात करें मल्टीपल डोज regime की, तो दिस regime we generally use for malignancy, ठीक है। There is one more regime, that is multiple dose regime. This is used in case of used for malignancy. तो इसमें हम कितने डोज देंगे, will give 3 doses per week, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल डोज regime, इसमें हम क्या करेंगे, ऑन डे 1 विल गिव द इंजेक्शन, विल गिव द मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट दे दिया आपने। नाउ डे 2, डे 3, डे 4, now on day 4 what you going to do, you will repeat the HCG, you will repeat HCG, ठीक है। again after that day 5, day 6, day 7, again on day 7 what you will do, again repeat HCG, ठीक है। ठीक है, डे 1 पे सैंपल जाएगा, फिर आप डे 4 पे HCG करवाओगे, अगेन आफ्टर डे 7 यू विल डू व्हाट, HCG टेस्ट। नाउ अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट हमने इस पेशेंट को दिया वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। अगर तो ऑन डे 7 देयर इज अ डिक्रीज इन HCG लेवल बाय 15% मीन्स आवर ट्रीटमेंट वर्कड। सो फॉर सक्सेसफुल medical treatment, if HCG level decreases by 15%, this suggests our treatment worked, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल HCG की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई, ठीक है। HCG की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई by 15%, then what you gonna do, again will give the next week, again हम क्या करेंगे, मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देंगे, again repeat methotrexate injection if HCG levels still not decreased, ठीक है। अब कैसे हम करेंगे, ये जो डे 7 था, नाउ यू विल कंसिडर दिस डे 7 एज डे 1, ठीक है। नाउ दिस डे 7 बिकम्स डे 1, ठीक है। अब आपने डे 1 पे अगेन मेथोट्रेक्सेट दिया फीमेल पेशेंट को, देन अगेन D2, D3, ऑन डे 4 अगेन यू विल रिपीट व्हाट, यू विल रिपीट HCG करवाया। आफ्टर दैट डे 7 पे फिर से आपने क्या किया, यू रिपीटेड HCG, ठीक है। अगेन आपने रिपीट किया, सेम ऐसे आप कितनी बार इंजेक्शन रिपीट कर सकते हो, यू कैन गिव 3 मेथोट्रेक्सेट इन टोटल, ठीक है। सो वी कैन गिव 3 मेथोट्रेक्सेट इन टोटल, एंड अगर 3 मेथोट्रेक्सेट देने के बाद भी HCG लेवल कम नहीं हुए,
if fall is still not less than 15%, so हम क्या करेंगे आगे? We will go, means this suggests our medical management failed. Now we'll proceed with the surgical management. This means medical management failed, and now we'll proceed with what? With the surgical management. Okay. अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? In surgical management, what you gonna do? First, we will go for laparoscopy. See, अब आप बोलोगे आपने लेप्रोटोमी क्यों नहीं बोला? Mainly, laparoscopy is more preferred upon laparotomy. So, first हम क्या करेंगे? लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है? सेकेंड, अगर अनस्टेबल पेशेंट है ना, तो उस केस में यू कैन गो फॉर लेप्रोटोमी. सो राइट इट हियर, इन केस ऑफ अनस्टेबल पेशेंट यू कैन डू व्हाट? लेप्रोटोमी. स्टेबल पेशेंट में विल ऑलवेज गो फॉर लेप्रोस्कोपी. थर्ड थिंग that you can do here is what? That is salpingotomy. Salpingotomy is more preferred than salpingoectomy. ठीक है? Salpingotomy में हम क्या करते हैं? एक छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं, ठीक है? And from that opening we will remove the product of conception, ठीक है? By the suction. Mainly क्या करेंगे? हाइड्रोडाइसेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है? और बाद में आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यू वोंट सूचर दैट, जस्ट लीव इट एज इट इज. ओके. एंड इन केस ऑफ सेल्फिंगोएक्टोमी आप क्या करोगे? जो भी डैमेज ट्यूब है, आपने जब कट दिया, जो डैमेज ट्यूब हुई उसको आप ऐसे ही रिमूव करोगे, ठीक है? सो यू विल रिमूव हियर, यू विल रिमूव डैमेज्ड ट्यूब. सी, इसमें भी दो केस हो सकते हैं. एक के अभी दे वांट चाइल्ड, ठीक है? सो इन दैट केस आप पार्शियली उसको रिमूव करोगे. बट अगर उनको भी बच्चा नहीं चाहिए, दे डोंट वांट मोर किड, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर टोटल सेल्फिंगोएक्टोमी, ठीक है? सो टोटल हम करेंगे इफ द चाइल्ड इज नॉट नीडेड, बट पार्शियल हम कहाँ करेंगे? इफ द चाइल्ड इज स्टिल डिजायर्ड, ठीक है? तो just remember about this surgical management. Now they can ask you what are the indication for salpingoectomy. So what are the indications? Salpingoectomy. So here the first indication is ruptured ectopic. First is if there is a ruptured ectopic, so you can go for salpingoectomy. Second is in case of in vitro fertilization. Third is complete family. अगर family complete है तो even though you did this तो चलेगा उस फीमेल को, ठीक है? In case of complete family, क्योंकि उनको अभी और बच्चे तो चाहिए नहीं, तो यू कैन रिमूव द फेलोपियन ट्यूब. फोर्थ इंडिकेशन इज इफ द साइज, जो सैक का साइज था, दैट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इन दैट केस ऑब्वियसली यू विल गो फॉर salpingoectomy. And fifth is to maintain the hemostasis. Means in case of ruptured ectopic, obviously you have to maintain the hemostasis. So that's why salpingoectomy can be done to maintain hemostasis. Okay. Now next we'll go for expectant management.
सो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करने का क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट आपको वो पता होना चाहिए. सो क्राइटेरिया फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, अगर इस फीमेल में आपको एक्स्ट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक नहीं दिख रहा ऑन यूएसजी, तो you can go for expectant management. So first criteria is no visible gestational sac on USG. Second is what? That is if the HCG value is less than 200 international unit and it is on the falling trend, mainly if that is on the falling trend, then you can go for expectant management. Third one is what? That is in case of stable patient. Stable patient में ही आपने करनी है expectant management, ठीक है. Now how you gonna manage here? expectant management में हम क्या करेंगे actually? फर्स्ट हम सीरियल एससीजी एग्जामिनेशन करते रहेंगे, बार बार उसका एससीजी रिपीट कराते रहेंगे टिल इट कम्स टू द नॉर्मल वैल्यू. एंड सेकेंड ऑब्वियसली यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है. सो फर्स्ट इज सीरियल एससीजी टिल इट कम्स टू नॉर्मल, एंड सेकेंडली monitor vitals. So this is about the expectant management. Now we'll discuss कि आप जैसे एक्टोपिक, सर्विकल एक्टोपिक है, एब्डोमिनल एक्टोपिक है, ओवेरियन एक्टोपिक है, आप इसको कैसे मैनेज करोगे और हम इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है. इन केस ऑफ सर्विकल एक्टोपिक, जर्नली जो क्राइटेरिया हम यहाँ पे फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैलमैन्स क्राइटेरिया. पैलमैन क्राइटेरिया, एंड एक और क्राइटेरिया था दैट इज रूबिन क्राइटेरिया. बट दिस रूबिन वन इज अ ओल्ड क्राइटेरिया. न्यू क्राइटेरिया क्या है? दिस पैलमैन इज द न्यूएस्ट क्राइटेरिया, ठीक है. सी सर्विकल एक्टोपिक को आप मैनेज कैसे करोगे? फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द मेडिकल मैनेजमेंट. फर्स्ट वी विल डू द मेडिकल मैनेजमेंट बाय मेथोट्रेक्सेट, एंड अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो आफ्टर दैट वी विल गो फॉर सर्जरी. और सर्जरी में क्या करेंगे? हम हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, ठीक है. सर्जिकल मैनेजमेंट में विल डू hysterectomy. Okay. Then if we talk about the abdominal ectopic, तो इस केस में जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं वी कॉल्ड इट एज अ स्टडीफोर्ड क्राइटेरिया. स्टडीफोर्ड criteria. Sturdiford criteria is generally for what? For primary abdominal ectopic, ठीक है. ये हम प्राइमरी एब्डोमिनल एक्टोपिक के लिए यूज करते हैं. एंड आपको क्या याद रखना है? मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल एक्टोपिक, इफ दे आस्क यू मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल एक्टोपिक, so your answer will be what? Secondary abdominal ectopics are more common. Primary one is rare. Okay. So अगर किसी फीमेल में एक्टोपिक एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, किसी में एब्डोमिनल एक्टोपिक है, तो फर्स्ट दिस इज व्हाट? दिस इज अ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी. इररिस्पेक्टिव ऑफ what is the period of gestation, आप क्या करोगे? you will go for emergency laparotomy. So this abdominal ectopic is obstetrics emergency, and in this case what you gonna do?
you will do emergency लेप्रोटोमी. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, विल रिमूव द फीटस. यहाँ पे हम फीटस को तो रिमूव कर देंगे बट हम प्लेसेंटा रिमूव नहीं करेंगे. अब हम प्लेसेंटा क्यों नहीं रिमूव करते हैं, बिकॉज जो प्लेसेंटा है ना वो कुछ वाइटल्स ऑर्गन के साथ अटैच्ड हो सकता है. बिकॉज ऑब्वियसली हमने क्या बोला था, एब्डोमिनल में ये जो वैस्कुलर सप्लाई है कहाँ से आती है फीटस को, फ्रॉम द वाइटल ऑर्गन, सराउंडिंग वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है. तो इस केस में यू वोंट रिमूव द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा की अपने आप ही ऑटोलिसिस हो जाएगी. ठीक है. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी लेप्रोटोमी, remove the fetus but don't remove placenta. क्यों नहीं करना, because it is attached with vital organs. So हम क्या करेंगे, further this placenta undergo autolysis digestion. Okay. Now in case of, if we talk about the case of ovarian ectopic, what you wanna do? In case of ovarian ectopic, यहाँ पे हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? वी जनरली फॉलो द स्पीगलबर्ग्स क्राइटेरिया. इट इज व्हाट वी जनरली फॉर्म स्पीगलबर्ग क्राइटेरिया. ठीक है. Spiegelberg criteria is mainly for the primary ovarian ectopics. और यहाँ पे how you gonna treat the ovarian ectopic? So for the treatment you will go for surgery. Now let's discuss about the heterotropic pregnancy. Tropic pregnancy. How you gonna manage this pregnancy? फर्स्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, यू विल गो फॉर सेल्फिंगोएक्टोमी. सेल्फिंगोएक्टोमी करेंगे हम यहाँ पे जस्ट रिमेंबर दिस, मेडिकल मैनेजमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सी, ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, दिस हीट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी, इट इज़ मोस्टली मिसडायग्नोस्ड. वाई इट इज़ मिसडायग्नोस्ड? बिकॉज ये अर्ली प्रेगनेंसी में डायग्नोस ही नहीं होती. इट इज़ मोर लाइक यू कैन एबल टू डायग्नोस दिस प्रेगनेंसी इन द लेट स्टेजेस. सो इफ इट रिमेन्स मिसडायग्नोस्ड, देन क्या होगा? टू थिंग्स विल हैपन. ये प्रेगनेंसी ऑब्वियसली ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, so it will be grown in size, and secondly अगर ये ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो rupture can be there. So you will manage this condition by doing selfingoectomy. Okay, so this is all about the ectopic pregnancy. I hope you like this video. So thanks for watching.